So welcome to you all to the PYQ series of calculus. So we'll be solving PYQ of 2021. Fine. So like the first question is, we have to solve this limits. This is del x upon x. F is a real value differential function and alpha is a constant. Then find the limits. Find the limits. X tending to 0 del x. So if we observe clearly, it's become something like 0 by अगर del में 0 put करें तो it will become f of alpha, f of alpha, f of 2 alpha, f of 3 alpha. It is also f of alpha, f of 2 alpha. This means that this determinant of this determinant would become 0. Basically first and second row is same, that's why del x would become 0. Del of 0 becomes 0. So we can say that therefore del of 0 is 0. It is 0 by 0 format. So we can apply an hospital rule. We get the limit of x tending to 0. 1 del of x would become our answer. So now from here we can apply matrix properties, like how we find the derivative of matrix. So what we can do here, now let's say this is A. Now del of delta x would become जो वेरिएबल वाले terms हैं, we will be differentiating them. So it will become f dash alpha, f dash x plus alpha, f dash x plus 2 alpha, f dash x plus 3 alpha. Right. This will become f of alpha, f of 2 alpha, f of 3 alpha, f dash alpha, f dash 2 alpha, f dash 3 alpha. I think we are correct. Now if we had put 0 here, so it will become del of 0. We have substituted limit values. And let's say we will be substituting in later part. So ऐसा आ गया हमारे पास. So now limits x tending to 0 delta x is equals to f dash alpha, f dash 2 alpha, f dash 3 alpha. This is f of alpha, this is f of 2 alpha, this is f of 3 alpha, f dash alpha, f dash 2 alpha, f dash 3 alpha. Since first and second row, first and third row are same, that's why the mod of this determinant would be 0. 0 from A we can say that limit x tending to 0 del of x upon x is nothing but del dash x 1 limits x tending to 0. This will give out to be 0 because del of 0 is del dash 0 is 0. So this is our answer. So coming to the second question. So this is a very standard kind of problem. Like जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो कि f of x के रूट्स अल्फा बीटा है एंड we have to show कि some g का फंक्शन g का कोई रूट है b gamma which gamma lies between alpha and beta. In such kind of problem we should always think about Rawls theorem. जो भी
कैलकुलस में हमने पढ़ा है जो भी थियरम्स लाइक CMVT, कॉची मीन वैल्यू थियरम, ये सारे हमें सोचने चाहिए कि हाउ वी कैन यूज दोज थियरम इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल सोल्यूशन. So similarly, we will be thinking on the same line in this problem also. So what we can say here. So given the two roots of two so that between any two roots of e raised to the power x cos x equals to 1, there exists at least one root of e raised to the power x sin x minus 1. So what we can do here, yeah, so what we can do here, we have to manipulate something like this so that we will be getting this term. Just there is a manipulation here, like an application of theorems. So let f of x is if we take e की power to the right hand side, it will become cos x e की power minus x. Why we are doing so, I will let you know in the upcoming steps. So say this is f of x, so it will become say cos of x minus e की power minus x equals to 0. And we are looking for the format in which we can either apply LMVT or apply Rawls or apply CMVT. तो हम लोग उस कंडीशन को ढूंढ रहे हैं ताकि हम लोग वी कैन अप्लाई टेक एडवांटेज ऑफ द थ्योरम्स एंड गेट द फाइनल सोल्यूशन कि इसका कोई रूट होगा जो कि दोनों के बीच में लाई कर रहे हो इसके रूट की. तो से दिस इज द रूट, लेट अल्फा बीटा बी रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स so 0. So now what we can do here, f of x का रूट जो है अल्फा बीटा है, therefore we can say that f of cos alpha is equals to minus alpha, and f of alpha, f of beta is cos beta e per minus beta. So this is a. So अब रूट्स का आ रहा है तो हम लोग रॉल्स सोच सकते हैं. तो रॉल्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि सिंस एफ एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए. चूँकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें इसको लिखने का पर्पज़ क्या था ऐसे कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग टर्म्स लाइक दिस. इफ वी डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स वी विल बी गेटिंग द टर्म दैट इज गिवन इन द upcoming equation, this whole equation. That's why I wrote this equation into that format. So the condition of roles, since first condition, since f of x is continuous because e of x e की power e raised to the power minus x is continuous, cos x is continuous. There is no any point of x for which f of x is discontinuous. Second, f of x is differentiable also, on the similar line, like e of x is always differentiable, cos of x is always differentiable, so their sum is also differentiable. And third condition is f of alpha is equals to f of beta because their roots equals to 0. Therefore, by Rawls theorem, there exist for every नहीं, there exist का सिंबल ऐसा है c between a से b, alpha से beta, such that f dash alpha f dash c is 0. ऐसा कर देंगे अपन. तो
f dash c is f dash c is now पहले f of x लिखते हैं. Now f dash x is e की पावर माइनस एक्स का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x e की पावर माइनस इक्वल टू 0. Now f dash c is हम इसको अगर e की पावर x को ऐसे कर दें, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि e की पावर x को इधर लेके आए. LHS और e मल्टीप्लाई e की पावर x बोथ साइड. LHS आर बोथ साइड left hand side and RHS right hand side. It will become something like this: e की पावर x sin x plus 1 equals to 0. तो f of इसको x से लिखते हैं प्लीज. f dash c is minus e की पावर x e की पावर c sin c plus 1 equals to 0. Yeah, this we had to prove. हम कुछ ऐसा था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Therefore इसको ऐसे लिख दिया e की पावर c sin c minus 1 equals to 0. Therefore for c belongings to a से b alpha beta e of f dash e की पावर c sin c. Therefore for c belongs to e की पावर x sin x minus 1 because 0 has a root. Yes, root. बस ये प्रूफ हो गया. बस एप्लीकेशन था, कंडीशन लगानी थी. इधर थिंक अलोंग द लाइन ऑफ रॉल्स CMVT LMVT. तो बस इन्हीं के लाइन सोचना था. Now coming to the third question. Sorry, yeah, this would be third, but the order is to be. We have to find out f of x y. Like basically this is nothing but partial differentiation of f of x, partial differentiation of y, f of x y. So we have to apply the definition, like what is f of x, what is partial differentiation of f with respect to x. This is f of x is nothing but partial differentiation of f of f with respect to x. So from the very standard definition we can say that standard definition f of partial differentiation of x f with respect to x is limit x tending say h tending to 0 f of from definition. This is nothing but the definition of differential. Limit of f y minus f of x. This is the definition we will be applying everywhere, like whether we will be finding f of yx, this wala term or this wala term. So we have to find out f of x 0, 0 will become limit
h tending to 0, f of x is 0, h. So we can say that f of 0, f of x is nothing but ये, क्योंकि f of 0 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर और ये मॉड ऑफ h स्क्वायर बाई h लिमिट 0, ये अगर इसको पॉजिटिव खोलो या फिर नेगेटिव खोलो, it will be always come out to be 0 because एक h का टर्म होएगा इधर प्लस h और माइनस h, नहीं सॉरी ये ऐसा आएगा। हम लोग इसको चूँकि ये h स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, h स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट्स वाई h को 0 की तरफ ले जाए तो इट विल बिकम 0। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स ये हमें क्यों निकाल रहे हैं, वी विल बी सीइंग लेटर ऑन कि इसका यूज़ पड़ेगा ये निकालने के लिए। k tends to 0, f of 0 k minus f of 0 k. Now what we can do here, what we can do here, same चीज़ करेंगे, like it will become minus of mod k square minus 0 k. This will be like this। तो चूँकि मॉड है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो k स्क्वायर इज पॉजिटिव, k स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये माइनस नेगेटिव, इसको माइनस लगा के बाहर निकालेंगे, इसको 0 की लिमिट लगा दी। So again applying the same definition. Now f of x y, this is nothing but limit x h f of 0, 0, limit h tending to 0, f of y, f of y is h, f of y h, 0 minus f of y, 0, 0। बस डेफिनेशन ही लगाया, कुछ ज़्यादा कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस डेफिनेशन। हम अब x को डिफ्रेंशिएट y पे, इट इज़ नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ y। f ऑफ y इज नथिंग बट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बस वही लगाया। एंड वी नो दैट, मैंने बोला था कि ये वाला टर्म हमें पता होना चाहिए, तो हमें ये हमें पहले निकाल रखा है, तो दिस विल कम 0 क्योंकि हमने ये निकाल रखा है, इसका वैल्यू 0 आ जाए। नाउ सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। नाउ ये वाला वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वी नाउ वी विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग दिस वाला टर्म। इसको बोल दिया, इसको बोला ए। नाउ अगर हमको ये चाहिए एफ ऑफ वाई एच का मान 0, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि लिमिट्स, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0, डेफिनेशन यूज किया है, नथिंग एल्स।
सेम वाला ये वाला डेफिनेशन यूज़ किया। एफ ऑफ एक्स वाई है तो एफ एक्स एक्स तो एच हो जाएगा, वाई ज़ीरो हो जाएगा अपॉन के। तो ये वाला इसकी वैल्यू आएगी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। If I'm not wrong, this would be find limit k tending to 0. There are two options कि ये तो हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि मतलब ये एच स्क्वायर है, पॉजिटिव टर्म है। एंड देर आर टू ऑप्शन कैन बी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के व्हेन h square is greater than k square. Limit h square here is 0 only. Fine. Similarly, तो ये हमारे पास LHS में आ गया 0. Now, if we say this b, चूँकि हमें लिमिट्स निकालना है, तो we will be just looking for this case h square is greater than k square. हमें जीरो का अप्रोच करना है, एंड वी हैव टू सी हाउ वी कैन गेट द लिमिटिंग वैल्यूज. दैट्स व्हाई द केस इज अज्यूम्ड टू बी दिस. नाउ फ्रॉम ए f of x y 0, 0 is nothing but limits of f of y s, 0 h, ठीक है, and this value is nothing but 0. From b yes, क्योंकि ये वाला टर्म सेम है. Similarly, what we will do is now f of y of x is at 0, 0 would become limits k, 0, k tending to 0 f of x 0, k minus f of zero k. फर्स्ट डेफिनेशन ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही निकाल रखा है ये वाला टर्म. नाउ हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, इसको बोला c. नाउ अगेन f of x, partial differential of f of 0, k with respect to x is limit s, tending to 0 f of h k minus f of 0 k h square minus k square का मॉडुलस माइनस h square minus k square minus k square by h is tending to 0. Limit h tending to 0 h square minus k square plus k square ये नेगेटिव से खुलेगा.
ये नेगेटिव से खुलेगा तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. नाउ से के स्क्वायर जब बड़ा है एच स्क्वायर से, तो ये नेगेटिव से खुलेगा. माइनस एच स्क्वायर ये कब खुल रहे हैं ताकि मतलब जो एच वाला टर्म ऊपर आ जाए. दैट्स वाई हम अपनी लिमिट से पहुंच जाए और ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से है माइनस एच लिमिट्स tending to 0. Therefore we can say that therefore f of x y at 0 is f of y x 0 plus 0. बस यही दिखाना था. अभी यस. Fine. Yeah, let's go to the next problem. I think we are done. You know, many of you will be thinking कि हमने ऐसा क्यों किया. अगर let's say कि h square k square plus if k square अगर h square से ज़्यादा होता ये ग्रेटर देन 0 होता तो ये नेगेटिव से खुलता. माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर दिस विल के, तो इट विल बिकम माइनस ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के. अगर हम लिमिट लगाते हैं तो h की चूँकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता बिकॉज फॉर अगर अनटिल अनलेस h 0 नहीं होता तो ये लिमिट्स इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होता. बस अगर ये तो 0 हो जाता बट इट विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट. सो इन ऑर्डर टू मेक द लिमिट एग्जिस्टेंट वी हैव टू ओपन लाइक दिस. क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है. And because it is a continuous function, we know that there is mod is a continuous function. That's why a limit should exist. Mod का ग्राफ हमें पता है ना, तो कोई भी discontinuity नहीं है. That's why this limit should exist. That's why we should open like this. Coming to the fourth question, I think it is u is this, v is this, and x y is this. Sorry. Now what we can do, we have to find Jacobian. So from the definition, from the chain rule, we can say that del of u of v. There are also two methods to solve this. Method one would be like you take u in function of r theta and v is in function of r theta also, and apply the Jacobian. And another method is method 2 is apply chain rule and apply del u by del r del theta. एंड सो व्हाट वी ऐसा अगर हम करते हैं, जो पहला मेथड करते हैं, तो u और v को r थीटा में ले जाओ. तो u इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर तो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर. तो आर स्क्वायर हो जाएगा. वी स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर
cos square minus sin square दे देंगे, तो ये बिल्कुल r स्क्वायर cos 2 थीटा। बस यही तो हमें चाहिए था कि या तो ऐसे कर लो या फिर चेन रूल लगा लो। r थीटा u v, इसको पहले कर लो x, चूँकि x u x y का फंक्शन है, पहले x y से कर लो, या फिर हाँ पहले चूँकि u x का फंक्शन है तो पहले x का कर लो, फिर x r का फंक्शन है तो फिर r x का जैकोबियन लगा लो r डायग्राम से। सो दिस इज द अनदर मेथड टू डू दिस। क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आसानी से हो जा रहा है, तो वी कैन गो विद दिस मेथड ऑल्सो। दिस मेथड विल ऑल्सो वर्क, दिस मेथड इज ऑल्सो वर्क। तो इसका कर लेते हैं डेल यू वी पर डेल आर थीटा। इसका डेफिनेशन से वी नो दैट डेल यू बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर, del u by del theta, del v by del theta. If we solve this, del u v del r theta, u is nothing but 2r v, चूँकि थीटा है ही नहीं, सॉरी r का टर्म्स में करना है, v को r के टर्म्स में करना है। This is 2r cos 2 थीटा, u का करें तो 0 हो जाएगा, साइन का डिफरेंस cos करें माइनस साइन, माइनस r स्क्वायर 2 cos का डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा। I hope it is clear to you. बस सही किया ना अपनी, इसका डिफरेंशिएशन कॉस का, साइन का डिफरेंस कॉस का माइनस साइन यस। बस इसको करते हैं अपन, तो माइनस 4 क्यूब साइन 2 थीटा डेल यू वी डेल आर थीटा। So this will be our answer. This. Now moving on to the last question, I guess. So हमें दिख रहा है कि लाइक जब भी वेरिएबल लिमिट्स हो तो वन थिंग दैट शुड कम टू आवर माइंड इज लेबनिज इंटीग्रल रूल। तो लेबनिज क्या होता है? लेबनिज आई डोंट नो, मे बी स्पेलिंग यही सही है, लेबनिज इंटीग्रल रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, चूँकि वेरिएबल यू नो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, दैट्स व्हाई वी आर टेम्प्टेड टू थिंक अलोंग दैट लाइन। सो लिबनिज का डिफरेंस क्या होता है कि लाइक डी एक्स ऑफ, मैं जनरल लिख रहा हूँ, ए एक्स बी एक्स एफ ऑफ एक्स कमा टी, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स और टी का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन फैक्टर टी। तो ये जो होता है इसमें पहले क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इसमें टी की जगह पर ए एक्स रख देते हैं, बी एक्स रख देते हैं, और फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एक्स बी ऑफ एक्स का माइनस सेम एफ ऑफ टी की जगह पर ए एक्स रख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं ए ऑफ एक्स का। अब क्या करते हैं कि लाइक प्लस सेम एफ ऑफ एक्स ए एक्स
और ए एक्स का लिमिट सेम रखते हैं, बी एक्स का लिमिट सेम रखते हैं, देन आफ्टर व्हाट वी डू हियर, एफ ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी. Yes, this is the formula for our Leibniz rule, integral rule. So we will be applying so here also apply Leibniz. I hope मेरा spelling सही है. So if you differentiate both sides, it would come out to be f of x, क्योंकि t को x से रिप्लेस किया और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये वाला टर्म हमारे पास लग गया, क्योंकि ये वाला टर्म तो लगेगा ही नहीं, कौन जीरो हो जाएगा, इवन ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज ओनली फंक्शन ऑफ टी. एफ ऑफ एक्स 1 प्लस माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स. हमें यहाँ ये पता चल गया. इफ यू टेक दिस ये वाला टर्म एलएचएस में लेके आया, एफ ऑफ एक्स 1 plus x is 1. F of x is nothing but 1 upon 1 plus x. This implies that f of half 1 is. बस ये तो अलग है. बस पता होना चाहिए लिबनिज क्या होते हैं. इवन 12th में भी हमने पढ़ा था, ये 12th क्या कॉन्सेप्ट है. द बीटा फंक्शन, बीटा का हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि बीटा होता क्या है, तभी सॉल्व हो पाएगा ये. लाइक इस टाइप के सवाल यूपीएससी अक्सर पूछता है कि लाइक व्हाट इज़ बीटा, व्हाट इज़ गामा, तो ये व्हाट इज़ डायरेक्ट डेल्टा. तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दीज फंक्शन. बीटा क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी ने पीवाई में पूछे हैं, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन नहीं, ऐसे नहीं मेंशन करा मैं. डायरेक्ट डेल्टा क्या, डायरेक्ट डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा. इवन ये 2024 में भी पूछा है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पे एफ एन फंक्शन. तो ये सब चीज़ें यू मस्ट नो कि क्या होता है, क्या है. आई कैन गिव यू लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि क्या कब पूछा. आई थिंक ये मे बी ओडी में पूछा था. यस, सी दिस इज एरर फंक्शन पे डेफिनेशन में पूछ लिया. यू मस्ट नो कि ये सारे डेफिनेशंस क्या होते हैं. तो इफ़ यू नो दिस, यू विल बेटर बी एबल टू, यू विल नॉट एक्चुअली पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम हॉल कि ये क्या ही पूछ लिया, अगर पता होगा तो. यस, तो फाइन, डन. ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, फाइन. तो ये सब आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज कि क्या होता है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ क्या है. यू विल नॉट पैनिक व्हेन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल आस्क इन एग्जाम. तो बीटा एवन क्या होता है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन 0 से 1 तक होता है. इसके वेरियस फॉर्म्स हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द बेसिक्स फॉर्म. दिस इज द फॉर्म. एंड अब क्या करना है कि इसको अपन को इसके फॉर्मेट में लेके आना है. तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि लिमिट्स हमें देख रहे हैं कि लिमिट्स ए से बी है. तो लिमिट्स क्या करना पड़ेगा कि 0 से 1 बनाओ. तो इसको बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यू मस्ट रिमेंबर दिस कि एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दो ए से. ए इज़ लोअर लिमिट एंड बी माइनस ए, बी इज़ अपर लिमिट एंड ए इज़ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू जेड इनटू जेड. जेड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम था कि 0 1 बनाना है लोअर और अपर लिमिट्स को. एंड हमें दिख रहा है कि एक्स 1 माइनस एक्स समथिंग दिख रहा है, समथिंग इस फॉर्मेट में दिख रहा है. तो हमारा काम, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पता चलता है. बस अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं कि अब जेड में ले जा रहे हैं. तो ए को जब ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है. अब एक्स को रख दिया, अब यहाँ पे रख रहे हैं. तो डी एक्स वुड बिकम बी माइनस ए डी जेड. बस अब ये पुट ही करना है, बी माइनस ए का एम
जेड एम, अब इसमें रखा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए, नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए जेड की पावर एन डी एक्स बी माइनस ए डी जेड, इंटीग्रेशन ये बोल दिए, इंटीग्रेशन बी माइनस ए तो कॉन्स्टेंट है, लेके बाहर आ जाते हैं, जेड की पावर एम। अब क्या करें, ये इसमें देखो कि बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो बी माइनस ए की पावर एन 1 माइनस जेड की पावर एन, हाँ डी जेड सॉरी डी एक्स इज नथिंग बट ये वाला टर्म डी एक्स था, तो अब बी माइनस ए यहाँ से भी आएगा, अब कुल मिला के ऐसा कुछ हो जाएगा बी माइनस ए एन, ये वाला एन और बी माइनस ए का पावर 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 जेड की पावर एम 1 माइनस जेड की पावर एन डी जेड से, मतलब तो पता चल गया ना ये, वी गॉट इट ना कि ऐसा कुछ हो गया, तो हमारा सिमिलर फॉर्मेट मिल गया। आई apologize here कि लाइक बी ऑफ बीटा ऑफ बी एम एन इज नथिंग बट बी माइनस एन माइनस 1, सॉरी हाँ पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं, एक्स की पावर एम एन की पावर एन, तो इसको बी ऑफ बीटा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन बोलते हैं, एक इससे ज़्यादा, एक उससे जो कि इसका पावर है उससे जस्ट एक ज़्यादा, इसमें ये बोला, तो ये डेफिनेशन था, तो इट इज़ नथिंग बट बी माइनस ए एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन प्लस 1, दिस इज नथिंग बट बी एम प्लस 1 एन प्लस 1, yes this is the way that we have to represent in बीटा फंक्शन के फॉर्म में, ये बीटा फंक्शन कांस्टेंट, सो आंसर, और ऑल्सो इंश्योर दैट जो बीटा का ये एम ग्रेटर देन -1 एन ग्रेटर देन -1, ये वाला टर्म जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन की, हम सारे डेफिनेशन को ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लास्ट क्वेश्चन दिस एरिया ऑफ एस्टेरॉइड। सो इस साल ये कैलकुलस में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, 5-6 सवाल पूछे गए थे, विच वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, लाइक हमेशा 3 से 4 सवाल पूछते हैं, इवन लाइक यूपीएससी थ्रो सम गुगलीज लाइक दिस, लाइक कभी कभी ओडीसी इतने सारे ढेर सारे सवाल पूछ लेते हैं। इफ यू सी 2018 का पेपर, यू विल फाइंड कि यूपीएससी ने सिर्फ ओडी ही पूछे हैं सेक्शन 2 में, बाकी तो मतलब कुछ बहुत ही कम टच किया है दूसरे वाले सेक्शन पे, लाइक वेक्टर एंड ऑल, वेक्टर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो पेपर 1 पार्ट 2 सेक्शन 2 यू शुड शो कि मतलब कभी कभी यूपीएससी ऐसे गूगली फेंकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। लाइक फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस, फर्स्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम कि होता क्या है, कैसे दिखता है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पर सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें पता चलना कि लिमिट्स क्या होना चाहिए, वो सारे कि मतलब एक्स वाई कैसा दिखता है, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस। तो अब क्या है ना कि थोड़ा सा इस पर डायग्राम पे ध्यान दीजिए कि कैसा दिखता है। इसमें 2 सब पार्ट है कि एक पहले डायग्राम बना, देन आफ्टर यू फाइंड द एरिया, दैट्स वाई वी हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ये एक्स ये वाई। अब देखो, अब देखते हैं कि लाइक हमें थोड़ा थोड़ा पैरामीट्रिक का भी पता चल रहा है कि एक्स जो है ए
कॉस क्यूब डाल दूँ मैं थीटा, वाई डाल दूँ ए साइन क्यूब थीटा, जो कि फील आ रही थी क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग टाइप का बन रहा था। दैट्स वाई ये पैरामीटर है। If you will see कि ये satisfy कर रहा है, XY satisfy कर रहा था, तो this can be taken as a parameter of this asteroid. So x जब जीरो है तो y x जब जीरो है x साइन अब थीटा जब थीटा इक्वल टू जीरो है तो साइन जीरो जीरो ये हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब y ए होगा एक्स ये होगा ये होगा, मतलब कुल मिला के ये एक ऐसा कुछ बन जाएगा कि इस पर ये जीरो हो रहा होगा। फाइन, इस वाले पे मतलब इसकी वैल्यू मतलब ये वाला जो कर्व है वो इससे पास कर रहा होगा इन वाले पॉइंट से। नाउ वी हैव टू सी कि कैसे पास कर रहा होगा, नेचर क्या होगा इन दोनों के बीच में। इक्वी डिस्टेंस है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा था तो छोटा, ये इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, ये थोड़ा एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस क्या है, ये तो स्क्वायर ही हो जाएगा। 90 का एंगल है, 45 स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू सी कि इसके बीच में कैसा दिख रहा है। व्हाट वी कैन डू हियर कि हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट कि इसके बीच में कर्व का नेचर कैसा है। इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हमें बस देखना पड़ेगा कि हाउ इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, और इट कुड बी मतलब इन्फ्लेक्शन आएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो विल बी फाइंडिंग आउट कि कैसे अपन बीच का नेचर है। तो वी कैन फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। इसका करें अपन तो a 3 साइन थीटा, साइन थीटा में ले आ रहे हैं, थीटा में ले आ रहे हैं बेसिकली, साइन 3 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा टू कॉस थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कैंसल, तो इट विल बिकम माइनस tan थीटा। तो कुल मिला के इसका देखें अपन, यहाँ पे थीटा, ये थीटा जब जीरो था तो ऐसा आ रहा था, थीटा जब पाई बाई 2 था तो ऐसा आ रहा था, थीटा जब 3 पाई बाई 2 था, 2 पाई था सॉरी, थीटा जब 3 पाई बाई 2। यस, नाउ इफ वी सी द डेफिनेशन कि अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा और थीटा सॉरी लेस देन जीरो, क्योंकि tan थीटा तो पॉजिटिव होगा, माइनस tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। हीयर ऑफ थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेके जीरो तक। सिमिलरली ये ग्रेटर देन जीरो होगा जब थीटा जब मैं पाई बाई 2 से लेके पाई तक। सिमिलरली ग्रेटर देन जीरो होगा when थीटा यस गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। फाइन, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले टर्म्स में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इन्फ्लेक्शन आने की संभावना ही नहीं है, तो दिस विल नॉट कम आउट। तो ये इधर ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग है, या तो ये कर्व आएगा या तो ये कर्व आएगा। अब हमें ये कॉन्केविटी चेक करनी की, इधर ये वाला टर्म है या फिर ये टर्म है, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो। tan थीटा डिफरेंस सेक्स स्क्वायर थीटा,
और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फॉर एवरी एक्स इट इज़ लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। तो मतलब कि ये हमेशा हमेशा कनकेव डाउनवर्ड है, लाइक ऐसा होगा, कनकेव अपवर्ड सॉर्ट ऑफ, like if we see the concavity, जब f of level c ग्रेटर देन 0 होता है तो ये कनकेव डाउनवर्ड होता है, कनकेव डाउनवर्ड, f c लेस देन 0 होता है तो कनकेव अपवर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि सी द स्क्वायर द पैराबोला वाला फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अगर आप एफ डैश करेंगे तो एक्स 2x आएगा, एफ डबल डैश 2x 2 आ जाएगा, तो इट वी नो दैट कि पैराबोला हमेशा अपवर्ड खुल रहा है। तो इट विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, इट विल बी ऑलवेज टूवर्ड्स 2। tan theta का डिफरेंशिएशन sec square theta, yes 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 yes, तो कुल मिला के ऐसा कुछ आएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अपन एक बार देख लें इसको कि tan से कनकेव अपवर्ड आएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या? लेट मी चेक यार कि कहाँ कुछ गलती करी। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि हम वी नो दैट कि tan x इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस माइनस tan x। तो कुल मिला के tan 0 पे जो होगा वो 0 स्लोप हो जाएगा। तो 0 स्लोप का मतलब है कि कुछ ऐसा कर्व जा रहा होगा, और tan π/2 पे कुछ मतलब कि ऐसा जा रहा होगा कि स्लोप है बेसिकली। तो कर्व विल बी गोइंग लाइक दिस। ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्लोप π/2 बन रहा है, बट हमें स्लोप ऐसा होना चाहिए। तो दिस विल बी, ये वाला तो गया, तो विल बी ये वाला हो सकता है बिकॉज यहाँ पे स्लोप 0 टाइप थीटा इक्वल्स टू 0 पे, एंड दिस वाला टर्म इस पे इस वाला पे थीटा इक्वल टू π/2 पे इनफाइनाइट भी दे रहा है। दैट्स व्हाई समथिंग लाइक विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके ग्रेट। सिमिलरली कर्व सिमेट्रिक होगा, लाइक इधर यू पुट थीटा और माइनस थीटा, थीटा को अगर माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो इट विल कम आउट टू वाई नेगेटिव आएगा, एक्स एज इट इज़ सेम, क्योंकि एक्स कॉस का फंक्शन है। तो कॉस 0 कॉस 90 कॉस साइन 0 0 यस CAST। तो कॉस पॉजिटिव होगा इधर माइनस थीटा में भी, तो ये कॉस सेम ही रहेगा। तो मतलब ये एक्स एक्सिस से अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, क्योंकि फॉर ए पर्टिकुलर एक्स देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ वाई। तो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हाउ यू वी गॉट इट, कि मतलब जब ये एक्स थीटा था, एक्स फॉर थीटा माइनस थीटा, तो एक्स सेम रहेगा, वाई माइनस हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस विल बिकम सिमेट्रिक, ऐसा कीजिए। सिमिलरली इस वाले पे देखिए तो यू विल फाइंड कि मतलब इस वाले में भी ये डिक्रीजिंग, इस वाले में इंक्रीजिंग आएगा। इस वाले में डिक्रीजिंग कर्व था क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, इस वाले में इस वाले सेक्शन में ये इंक्रीजिंग है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इट विल इंक्रीज, इट विल बी इंक्रीजिंग। और जब थीटा इक्वल्स टू पाई होगा
तब स्लोप जीरो हो रहा होगा, थीटा इसको पाई पे ये जीरो हो रहा होगा, तो स्लोप कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा। बट और जब ये इंक्रीजिंग है तो कुल मिला के ऐसा इंक्रीज कर रहा होगा, एंड विल फाइंड कि ये वाला मतलब भी सिमेट्रिक है। कैसे? थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा इसका करें तो साइन वाई सेम होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो फॉर पर्टिकुलर वाई देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, therefore it is also symmetric along y axis। और सिमेट्रिक एक्सिस में एक्स देखा ही था, तो कुल मिला कैसा होगा, ये चार इक्वल सेम मतलब सिमेट्रिक ग्राफ है, एक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा हचपच हो गया टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, बट यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कि दिस शुड मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आई विल पुट इट लेटर कि कैसा होना चाहिए। लाइक चूँकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये हमें लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड तो ये हमें एफ डबल डस हमेशा नेगेटिव है, तो मतलब ये हमेशा अपवर्ड होना चाहिए एज पर सॉरी डाउनवर्ड। मैंने ये चूँकि 2x है तो ये अपवर्ड खुलेगा, ये डाउनवर्ड खुलेगा, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक में देख लिया कि ये ऐसा है, तो ये डबल जब 2 है तो ये अपवर्ड, चूँकि वी नो दैट कि जब x का कोफिशिएंट 1 होता है, पॉजिटिव होता है सॉरी, तो ये अपवर्ड खुलता है। तो बट यहाँ पे ये डाउनवर्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे ये अपवर्ड खुल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, विच आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन क्यों हो रहा है ऐसा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन I will check it and will let you know, like I'm not able to explain it here कि क्या क्यों हो रहा है कर्व का कनकेविटी एंड, तो इट विल बी आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट ये हमें पता चल गया, हमने स्लोप की मेथड से देख लिया, और कि tan 0 पे ये जीरो हो रहा था ऐसा कुछ, और tan इनफाइनाइट पे ऐसा, और ये डिक्रीजिंग है इस वाले रेंज में, क्योंकि वाई डैश 0 से लेस कम है तो ये डिक्रीजिंग है, तो ऐसा कुछ आएगा। बस वही बेसिक चीज़ें ही अप्लाई करी हैं। कनकेविटी आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन, विल एक्सप्लेन इट कि कहाँ गड़बड़ करी मैंने। फाइन, वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, सो लेट्स कंप्लीट इट अर्ली। सो अब एरिया क्या हो रहा है, एरिया इज इक्वल्स टू dx dy का इंटीग्रेशन। ऑल्सो देयर आर टू मेथड्स, मेथड वन इधर यू गो थ्रू ग्रीन्स थ्योरम, इधर ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है कि एरिया इज नथिंग बट this can be written as dx dy is equals to half of y dx minus x dy over a closed loop, तो over closed loop, ठीक है। मेथड टू वुड बी जैकोबियन लगा लो, dx dy is nothing but जैकोबियन of x y r थीटा डी आर डी थीटा। चूँकि अब इसमें ध्यान रखना होगा कि हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ले जानी पड़ेगी इसमें, तो टेक द पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉइड इज नथिंग बट आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा y इज इक्वल्स टू आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे दें जब एक्स क्यूब डालेंगे, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बेसिकली। तो कुल मिला के आर स्क्वायर इज गोइंग फ्रॉम ए स्क्वायर से 0 तक, क्योंकि ये कोई भी एक जनरल पॉइंट लेंगे ऐसा, तो ये 0 से लेके यहाँ तक जाएगा। तो बेसिकली r would go from
10/3 एंड थीटा वुड गो फ्रॉम कंप्लीट सर्कल। तो या तो ये मेथड अप्लाई कर लो या फिर ये मेथड अप्लाई कर लो। तो मतलब मैं एक करके दिखाता हूँ, अदर वन इज ईजी, यू कैन ट्राई। तो पैरामीट्रिक लगा मेथड 1 लगाते हैं। तो इसमें इस वाले में हम ये वाला पैरामीटर से भी चल जाएगा, बिकॉज चूँकि एरिया है। इस फर्स्ट मेथड में क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट लाइक कि लूप क्या है, लाइक क्लोज लूप। चूँकि ग्रीन थ्योरम क्या करता है कि वो एरिया को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि उस सरफेस का लाइन इंटीग्रल कैसा होगा। तो फॉर दिस केस वी कैन टेक द पैरामीट्रिक एज x इज इक्वल्स टू a cos cube theta, y is equals to a sin cube theta. The area is nothing but half of x dy minus 5 dx. इसको करें अपन, oh my god, sorry इसको या तो ग्रीन थ्योरम लगा लो, सेव नहीं हो पाएगा, y dx minus x dy, या फिर जैकोबियन लगा लो। मैंने लिख लिया है, जैकोबियन लगा लो, जैकोबियन हो जाएगा। सेव नहीं हो पाएगा, फिर से लिखना पड़ रहा है। एक्स वाई एक्स को आप ले लो आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा, वाई को ले लो आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। अब लगा लूँगे ना, आर जा रहा है 1, थीटा जा रहा है 2 पाई, ऐसा कुछ जा रहा है वो। मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इज हाफ ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स क्या है, ए कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा डी एक्स हो जाएगा माइनस 3a साइन स्क्वायर थीटा 3a कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, साइन पहले ही बाहर निकल रखा है। वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर, साइन का डिफरेंस कॉस थीटा रख दो यहाँ पे। ओवर क्लोज लूप होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा I hope everything is correct. dy is nothing but 3a sin square cos theta d theta। और सिमिलरली ये माइनस ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा dx इज माइनस 3a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a। what we can do here from here 3a cos square sin theta d theta। अब d theta आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पर काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट आई ट्राई टू इंश्योर यू कि मतलब सब कुछ समझ में है, सब कुछ कैसे कैसे कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ से मैं साइन की पावर स्क्वायर आ जाएगा, कॉस की पावर 4, मतलब मैं साइन स्क्वायर को बस एस लिख रहा हूँ। यहाँ से भी 3a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब चूँकि अपन यहाँ पे 0 से
पाई भी कर सकते हैं, पाई बाई 2 कर सकते हैं, बिकॉज यू नो ये चारों तरफ सिमेट्रिक है। ये थीटा से पाई बाई 2 तक ये सिमेट्रिक है, इससे सिमेट्रिक है, हमने दिखाया है कि सिमेट्रिक क्यों है। तो इसको हम 4 टाइम्स 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं। 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई तक ये इसका इसका इस वाले का 4 गुना विल बी गिव फॉर 2 पाई, 40 से 2 पाई, 8 सॉरी 6 ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी थीटा। इसको करोगे तो ये विल गेट आउट टू बी, कैसे करेंगे बता देता हूँ जल्दी जल्दी। 0 से पाई बाई 2 एस स्क्वायर माइनस एस की पावर 4 डी थीटा 6 ए स्क्वायर। वालिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, पाई बाई 4। वालिस थ्योरम क्या होता है, सर्च गूगल। 3 बाई 4 2 बाई 1 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 पाई बाई 2। ये हो जाएगा 16, ये 4 पाई माइनस 3 पाई, तो मिला के 3 बाई 8 पाई स्क्वायर। दिस इज आंसर। काफ़ी टीडियस था, बट आई कुडंट एक्सप्लेन दिस वाला टर्म। आई विल लेटर एक्सप्लेन इट, कमेंट में डालूंगा कि कैसे होगा कनकेविटी के बारे में। बट ये वाला ऑपरेशन हो गया, ठीक है। इसके विदाउट भी कनकेविटी की विदाउट भी हमारा हो गया, क्योंकि हमने वाई डैश का नेचर पता चल रहा था कि कहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, कहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट हो रहा है। और चूँकि ये लेस देन है तो ये हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा। इट विल बी नॉट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, बट वी नो दैट एट थीटा इक्वल्स टू 0 स्लोप इज 0। तो इस ये वाला कर्व नेगलेक्ट हो गया, तो ये हो गया। अब मेथड 2 से यू कैन डू इट। काफ़ी लंबा वीडियो होगा, अदरवाइज मैं वो भी करके दिखा देता। सो ओके, थैंक यू ऑल।